Hello students, myself Rita Bafna for Business Law. Today I am going to take offer and acceptance. Already we had completed chapter of contract. We had dealt with the chapters introduction, law of contract, nature of contract, meaning of contract, essential elements of valid contract and classification of contract. Today we are going to deal with the offer and acceptance. What is the meaning of offer? What are the essential elements to offer, and what are the legal rules to a to form a valid proposal? Today we are going to deal with the offer and acceptance. So let us start with offer and acceptance. What do you mean by proposal and offer? So we have already discussed in the preceding chapter that an agreement enforceable by law is a contract. Now what is an agreement? An agreement enforceable by law is a contract. For the formation of a contract, there must be an agreement between the two parties wherein one person must make the proposal and other person has to accept for it. अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट करना है देर मस्ट बी एन अग्रीमेंट बिटवीन द टू पार्टीज. अग्रीमेंट दो पार्टीज में होना चाहिए वेर इन वन पर्सन मस्ट मेक द प्रपोजल, यानी एक पर्सन प्रपोजल करना चाहिए और अदर पर्सन शुड एक्सेप्ट इट, और सामने वाला जो अदर पर्सन है उस प्रपोजल को एक्सेप्टेंस देना चाहिए. देन इट बिकम्स ए कॉन्ट्रैक्ट. नो वी विल कम टू नो व्हाट इज एन ऑफर. An offer is a proposal by one party to another to enter into a legal binding agreement with him. An offer क्या है? एक प्रपोजल है. एक पार्टी प्रपोजल करता है दूसरे पार्टी को कि भाई मेरा ये ऑफर है, आप एक्सेप्ट करेंगे क्या? अगर वो सामने वाला एक्सेप्टेंस देता है देन दे एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट एंड दे आर लीगली बाइंडिंग on each other. It will be a legally binding agreement with them. Now we will come to know what is the term proposal. What is the meaning of term proposal? According to section 2 subsection A of Indian Contract Act defines proposal as under when one person signifies to another his willingness to do or abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of that other to such act or abstinence, he is said to make a proposal. When one person signifies to another, यानी एक इंसान सिग्निफाई करता है अनदर को, ही टेल्स टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू, कि मुझे इच्छा है ये करने की, या आप ये मत करना, abstain फ्रॉम डूइंग एनीथिंग विथ ए व्यू. क्या चाहिए आपको? obtain क्या चाहिए? assent ऑफ दैट या सच एक्ट और abstinence इज सेट टू मेक ए प्रपोजल. अभी ये मीनिंग हो गया टर्म प्रपोजल और ऑफर का. द पर्सन मेकिंग The person making the proposal is called the offerer. अभी person जो कोई इंसान प्रपोजल देता है उसको ऑफरर भी कहा जाता है, प्रपोजर भी कहा जाता है. The person to whom proposal is made is called offeree. अगर जो एक इंसान प्रपोज करता है यानी प्रपोजल देता है उसको ऑफरर भी बोलते हैं, प्रपोजर भी बोलते हैं, प्रॉमिसर भी बोलते हैं. और सामने वाला जो पर्सन उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करता है उसको ऑफरी भी बोलते हैं, प्रॉमिसी बोलते हैं, प्रपोजी भी बोलते हैं. Now for example, P says to Q, I want to sell my motorcycle to you for 75,000. Here P is called the promiser.
and Q to whom the proposal has been made is called promisee. Here P has made a proposal to Q. यानी मैंने आपको कहा I want to sell my motorcycle to you for 75,000. यहाँ पे एक नोट करना चाहिए कि जब आप प्रपोजल करते हैं यू हैव टू हियर दिस वर्ड आई वॉन्ट टू सेल. ये वर्ड बहुत ज़रूरी है. दिस वर्ड हैड should come. It should come. I want to sell my motorcycle to you for 75,000. Here P is called promiser. अगर मैंने आपको मोटरसाइकिल खरीदने को बोला है 75,000 में तो आई एम ए प्रोमिसर. अगर आपको प्रपोजल दिया है तो यू आर ए प्रोमिसी. हियर पी हैज़ मेड ए प्रपोजल. यानी मैंने अभी आपको प्रपोजल दिया है. अभी प्रपोजल में क्या कंटेन होता है? फॉलोइंग एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है? इट मस्ट बी मेड बाय वन पर्सन टू अनदर पर्सन. इट मस्ट बी मेड बाय वन पर्सन टू अनदर पर्सन. यानी एक इंसान ने दूसरे इंसान को प्रपोजल करना चाहिए. एटलीस्ट 2 इंसान होने चाहिए. 2 पर्सन इज नेसेसरी. इट मस्ट बी एक्सप्रेशन ऑफ willingness to do or abstain from doing something. That is, expression of willingness must be to do some positive act or to do some negative act. एक्सप्रेशन आपके क्या होने चाहिए? willingness to do. यानी आपको आप you are willing to do something and you are not willing to do something. यानी abstain from doing something. For example, P ask Q. Mr. Q, will you sell your car to me for 4 lakh? This is a proposal made by P to Q to purchase Q's car for 4 lakh. यानी P पूछता है Q को, will you sell your car to me? क्या आप अपनी कार बेच सकते हैं 4 लाख में? This is a proposal made by P to Q to purchase Q's car for 4 lakh rupees. तभी आपने एक एग्जाम्पल देखा. नेक्स्ट, अभी लीगल रूल्स एज अ प्रपोजल टू एसेंशियल फॉर ए वैलिड प्रपोजल. वैलिड प्रपोजल के लिए लीगल रूल्स क्या है? टर्म्स ऑफ द प्रपोजल मस्ट बी डेफिनेट और शुड बी केपेबल ऑफ बीइंग मेड डेफिनेट. यानी जब आप प्रपोजल किसी को देते हैं it must be definite यानी it should be neat, clean, clear and should be capable of being made. यानी जो प्रपोजल आप दे रहे हैं उसको आपने आगे करना चाहिए. it should be capable of being made यानी परफॉर्मेंस होना चाहिए उस प्रपोजल को. यानी एग्जाम्पल के जरिए देखते हैं हम लोग. P offers to pay a good price for the imported car of Q. This offer is uncertain as the term good price is not clarified. P ने ऑफर किया Q को कि भाई imported कार जो आप देंगे उसका मैं गुड प्राइस दूंगा मैं आपको. तो ये ऑफर अनसर्टन है. गुड प्राइस का मतलब क्या है? कितना प्राइस हो सकता है? गुड प्राइस का कुछ क्लियरिटी ही नहीं है कि कितना पैसा हो सकता है करके. देयर इज नो क्लियरिटी ऑफ गुड प्राइस. अभी सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं. P offered to sell to Q his Hero Honda motorcycle for 65,000 or as 20,000. अब P ने ऑफर किया कि मैं हीरो होंडा बेचूंगा Q को 65,000 में या 20,000 में. अभी 65,000 में बेचना है या 20,000 में बेचना है, ये प्राइस की क्लियरिटी नहीं है. हियर द प्रपोजल इज नॉट क्लियर, हेंस नो कॉन्ट्रैक्ट विल बी फॉर्म्ड फॉर सच प्रपोजल. ये कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे नहीं होगा. द टर्म्स ऑफ प्रपोजल मस्ट बी डेफिनेट. सो यहाँ पे 2 एग्जाम्पल्स आपने देखे हैं. तो प्रपोजल जो इन्होंने किया है वो डेफिनेट नहीं है, जो क्लियरिटी नहीं है. शुड बी केपेबल ऑफ बीइंग मेड डेफिनेट यानी क्लियर से होना चाहिए. तो सेकेंड वैलिड प्रपोजल का लीगल रूल, सेकेंड वैलिड प्रपोजल के लिए एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है?
The proposal must be made a view to obtain the consent of the promise. यानी जब आप प्रपोजल देते हो आगे वाले को, तो आपका कंसेंट ऐसा होना चाहिए कि भाई वो आगे वाला हाँ बोले. To constitute a valid proposal, mere expression of desire to do or not to do some act is not a sufficient. अभी वैलिड प्रपोजल के लिए सिर्फ एक एक्सप्रेशन कि हाँ भाई मेरी इच्छा है कि मेरा प्रपोजल है, आपको ये करना है या आपको ये नहीं करना है, तो वो सफिशिएंट नहीं है. द प्रपोजल मस्ट बी मेड ए व्यू टू ऑब्टेन द कंसेंट ऑफ द प्रॉमिस. So the third point is a proposal or an offer must be made with an intention to create legal relationship. जब आप प्रपोजल या ऑफर करते हो तो इट शुड बी मेड विथ एन इंटेंशन. आपका इंटेंशन क्या होना चाहिए कि इट शुड क्रिएट ए लीगल रिलेशनशिप. इट मीन्स if such proposal is accepted and an agreement is formed, अगर सामने वाला उस proposal को या offer को accept करता है, then agreement is formed. दोनों का agreement form हो गया. In sense, when one of the parties to the agreement fails to fulfill his part of obligations, अगर एक पार्टी agreement में fail हो जाता है कि उसका ड्यूटीज वो नहीं निभा रहा है, यानी ऑब्लिगेशंस ही इज नॉट फुलफिलिंग हिज ऑब्लिगेशंस, देन द पार्टी कैन सीक द कोर्ट इंटरवेंशन. यानी पार्टी जो सफरर है वो कोर्ट में जा सकता है एंड ही कैन एनफोर्स द अग्रीमेंट इन द कोर्ट ऑफ लॉ. हाउएवर यहाँ पे ए सोशल इन्विटेशन कैन नॉट बी रिगार्डेड एज एन ऑफर. सोशल इन्विटेशन यानी जो सामाजिक इन्विटेशन जो दिया है, किसी ने ऑफर किया है, उसको वैलिड नहीं माना जाएगा क्योंकि इट डज नॉट क्रिएट एनी लीगल रिलेशनशिप. फॉर एग्जाम्पल, इफ ए P invites Q to a dinner and Q accepts it as it is a social invitation, Q cannot take any legal action against P in case P fails to provide dinner to Q. अभी P इनवाइट कर रहा है Q को डिनर के लिए, डिनर को Q एक्सेप्ट कर भी देता है, ये एक सोशल इन्विटेशन है. अगर P फेल्स टू प्रोवाइड डिनर, अगर P प्रोवाइड नहीं कर रहा है डिनर, तो Q ही कैन नॉट टेक ए लीगल एक्शन बिकॉज दिस इज ओनली अ सोशल इन्विटेशन. So the fourth point is the proposal may be expressed or implied. If a proposal is made in words, either spoken or written, अगर proposal या तो शब्दों के द्वारा किया गया है या written यानी लिखा है, then it is an express proposal. And if the proposal is implied from the conduct of the parties, it is called as implied proposal. अगर proposal है implied है, अगर कंडक्ट ऑफ द पार्टीज, एक्ट ऑफ द पार्टीज है, देन इट इज कॉल्ड एन इम्प्लाइड प्रपोजल. एग्जाम्पल देखते हैं हम. ए वीडियो गेम मशीन केप्ट इन ए वीडियो गेम पार्लर इज एन इम्प्लाइड प्रपोजल टू यूज द मशीन फॉर द पर्पज ऑफ प्लेइंग बाय इंसर्टिंग द नेसेसरी कॉइन्स. Now we will see the fifth point. A proposal must be different from an invitation. Sometimes a person does not make a proposal but simply proposes certain terms and invites the other party to make a proposal on proposed terms. When goods are, for example, when goods are displayed by a shopkeeper in his shop windows or as a part of advertisement or catalogs, with or without price tag, courts have decided that they are not proposal to sell those goods but invitation made to the public at large to make proposal to purchase such goods. Hence, buyer cannot compel the seller to sell the goods which are displayed in a shop. A proposal must be different from invitation. Proposal जब आप प्रपोज कर रहे हैं, इट शुड बी डिफरेंट फ्रॉम एन इन्विटेशन.
जैसे कि गुड्स डिस्प्ले किया होता है शॉप में, तो शॉपकीपर के विंडो पेन्स में जैसे आप गुड्स देखते हैं एज ए पार्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट के तौर पे आपने गुड्स देखा है, डिस्प्ले किया हुआ है, आपने कैटलॉग्स देखा है, आपने इतने सारे कपड़े भी देखे हैं विथ और विदाउट प्राइस टैग्स। तो एक एक शॉपकीपर जस्ट इनवाइट कर रहा है दिखाने के लिए, गुड्स डिस्प्ले किया है तो वो सिर्फ दिखाने के लिए कि भी ये गुड्स अवेलेबल है मार्केट में, बट डजंट मीन दैट इट इज़ अ प्रपोजल। एक प्रपोजल नहीं है कि आप उसको एक्सेप्टेंस दें। तो कोर्ट ने इसमें कहा है, कोर्ट्स हैव डिसाइडेड दैट दे आर नॉट प्रपोजल टू सेल दोज गुड्स। ये प्रपोजल नहीं है, एक गुड सेल करने के लिए प्रपोजल होना जरूरी है। द वर्ड शुड कम, मैंने पहले भी बोला है वर्ड शुड कम। आई विल सेल टू यू, विल यू सेल मी, आई वॉन्ट टू सेल माई गुड्स। तो ये वर्ड्स आना जरूरी है। दिस इज ओनली एन इन्विटेशन, सो इट शुड बी ए डिफरेंट फ्रॉम इन्विटेशन। नाउ वी विल सी एन एग्जाम्पल। तो कोर्ट्स ने क्या बोला है, कोर्ट्स हैव डिसाइडेड दैट they are not proposal to sell those goods, but they are invitation to the public at large to make a proposal or to purchase such goods. Hence a buyer cannot compel, buyer compel नहीं कर सकता है seller को कि you have to sell the goods which are displayed in the shop. जो डिस्प्ले किया है आपको बेचना ही बेचना है, बायर कंपेल नहीं कर सकता है। सो वी विल सी एन एग्जाम्पल। When P goes to a Super Bazaar garment section and selects t-shirt, no proposal and accepts are made so far. आप सुपर बाजार में जाते हो, टी शर्ट खरीदते हो वहाँ पे, तो देर इज नो प्रपोजल एंड देर इज नो एक्सेप्टेंस। इट इज ओनली व्हेन he goes to cashier to pay for it. He is said to have made an offer and cashier by receiving the required price is said to have accepted it. ये तभी होता है जब आप कैशियर के पास जाते हो और बाद में आप कैश पे करते हो, तभी माना जाएगा कि आपका ऑफर है और सामने वाला ने आपके ऑफर को एक्सेप्टेंस दिया है। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज मेकिंग एन इंक्वायरी और क्वेश्चन इज नॉट ए प्रपोजल। An answer given to such an inquiry or question cannot be called an acceptance of a proposal. एक बहुत बड़ा केस हुआ है हार्वी वर्सेस फेसी में। यहाँ पे हार्वी सेंट ए टेलीग्राम टू फेसी राइटिंग, विल यू सेल एस बम्पर हॉल पेन यानी प्लॉट ऑफ लैंड टेलीग्राफ टू द लोएस्ट कैश प्राइस। एफ रिप्लाइड बाय टेलीग्राम, lowest price for bumper hall pen is £900. So H again sent a telegram stating, I agreed to purchase bumper hall pen for £900 asked by you. F refused to sell the plot of land at that price. H filed a suit in the court of law against F for non-delivery of plot of land. The court held that no contract was created between H and F, that is Harvey and Facey, and as F only stated the price of the bumper hall pen and answered the question of Harvey, but F did not say anything which would amount to an acceptance of the proposal. In fact, in this case, we agreed to buy bumper hall pen for £900 was a proposal made by H for which F had not answered. Hence, there was no acceptance of the proposal and therefore no formation of contract between Harvey and Facey. ये हार्वी एंड फेसी बहुत बड़ा केस है। यहाँ पे हुआ था कि हार्वी ने एक टेलीग्राम लिखा फेसी को कि आप अपना प्लॉट ऑफ लैंड, लोएस्ट प्राइस क्या है प्लॉट ऑफ लैंड जो है आपके पास, उसका प्राइस क्या है। तो फेसी ने लिखा टेलीग्राम में £900। तो हार्वी ने फिर एक टेलीग्राम लिखा स्टेटिंग दैट मुझे एक प्लॉट ऑफ लैंड खरीदना है। तो फेसी ने रिफ्यूज किया, आई एम नॉट गोइंग टू सेल दिस प्लॉट ऑफ लैंड। तो हार्वी ने सूट फाइल किया कोर्ट में अगेंस्ट फेसी से।
कि आपने डिलीवरी नहीं दी है, आपने स्टेटमेंट तो बताया है कि ये पाउंड 900 का है आपका ये प्लॉट ऑफ लैंड। तो कोर्ट ने क्या कहा, देयर वॉज नो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन हार्वी एंड फेसी, क्योंकि फेसी ने सिर्फ आपको है ना एक प्राइस बताया है। इट वॉज ए क्वेश्चन टू योर आंसर, आपने जो सवाल पूछा है उसका आंसर दिया है, ना कि आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। देयर वॉज नो प्रपोजल फ्रॉम द साइड ऑफ फेसी एंड there was no acceptance from you also. He did not accept your proposal. So there was no contract for the proposal to form a contract. So next we will see the proposal must be communicated to other party. जब आप प्रपोजल करते हो तो इट शुड बी कम्युनिकेटेड टू द अदर पार्टी, यानी आप जब प्रपोजल दूसरे व्यक्ति को करना चाहिए तो इट शुड हैव द नॉलेज कि भाई सामने वाला मुझे पूछ रहा है, आपको नॉलेज होनी चाहिए एक्सेप्टेंस देने के लिए। द प्रपोजल मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द अदर पार्टी दैट इज प्रोमिसी। द प्रपोजल मस्ट बी ब्रॉट टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू whom इट इज मेड। किस इंसान को कर रहे हैं उसको नॉलेज होना चाहिए कि आप उसको प्रपोजल दे रहे हैं। इफ द प्रपोजल इज नॉट कम्युनिकेटेड टू द प्रोमिसी इट कैन नॉट बी एक्सेप्टेड। जब आप प्रपोजल कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं तो इट इज नॉट ए प्रोमिसी। इफ द प्रपोजल इज नॉट कम्युनिकेटेड टू द प्रोमिसी इट कैन नॉट बी एक्सेप्टेड। एक केस है लालमैन शुक्ला वर्सेस गौरीदत्त। यहाँ पे एक नेव्यू मिसिंग था, घर से एक नेव्यू मिसिंग था। गौरी दत्त नाम का एक इंसान था, उसका नेव्यू मिसिंग था। उसने सर्वेंट को भेजा अपने नेव्यू को ढूंढने के लिए। उसके बाद सर्वेंट गया उस नेव्यू को ढूंढने के लिए। तो गौरी दत्त ने सर्वेंट जाने के बाद गौरी दत्त ने अनाउंस किया, जो कोई मेरे नेव्यू को ढूंढ के लाएगा मैं उसको रिवॉर्ड दूंगा। बट ये बात उसके सर्वेंट को नहीं मालूम थी। सर्वेंट उस नेव्यू को ढूंढ के लेके आता है। बाद में मालूम पड़ता है सर्वेंट को कि मालिक ने रिवॉर्ड रखा था। तो वो क्लेम करने को जाता है कि मालिक आपने रिवॉर्ड रखा था, मुझे रिवॉर्ड चाहिए। बट कोर्ट ने कहा इट वॉज नॉट हेल्ड दैट सर्वेंट रिवॉर्ड रिकवर नहीं कर सकता है बिकॉज इट वॉज नॉट कम्युनिकेटेड। Here, the servant cannot claim the reward as the offer containing the reward was not communicated to him. Now, अभी next 8 देखते हैं. The proposal must be distinguished from the mere statement of intention. The proposal must be distinguished from mere statement of intention. When a person declares that he has the intention to do something, it does not amount to a proposal. यानी एक एग्जाम्पल देखते हैं. Harris versus Nickerson. N gives an advertisement in the newspaper that he would sell his furniture by auction on particular day in lawn of his bungalow. H, who reads the advertisement, reached the N's house at the given time only to find that the auction has been cancelled. N, in this case, H could not get compensation in the court of law because the said advertisement was merely a statement of intention to hold an auction. Here, यहाँ पे निकरसन जो एन है ये एडवर्टाइजमेंट देता है न्यूज़पेपर में दैट ही वुड सेल हिज फर्नीचर, वो अपना फर्नीचर ऑक्शन में एक पर्टिकुलर दिन अपने बंगलों में बेचेगा। जो हैरिस एच है वो एडवर्टाइजमेंट को पढ़ के उसके घर पे आ जाता है और फाइंड आउट करता है वेदर ऑक्शन हैज़ बीन कैंसल्ड और नॉट हैड बीन कैंसल्ड। इन दिस केस हेच आके कॉम्पनसेट पूछता है कि आपने एडवर्टाइजमेंट तो दिया था। तो कोर्ट कहता है ये सिर्फ एक एडवर्टाइजमेंट था, एक स्टेटमेंट था,
It was not a proposal, it was only an invitation, it was only an intention or a statement. So it cannot be a proposal. So next point है, the proposal should not contain a term the non-compliance of which would amount to acceptance. The proposal should not contain a term the non-compliance of which would amount to acceptance. Proposal में एक term नहीं होना चाहिए. यानी एग्जाम्पल देखते हैं, P writes Q, I shall buy your car for 90,000. If you do not reply, I shall assume that you have accepted my proposal. This is not a valid offer. यानी P लिखता है Q से, I shall buy your car, मैं आपकी कार खरीदना चाहता हूँ 90,000 में. अगर आपने इस बात का रिप्लाई नहीं दिया तो मैं ये समझूंगा कि आपने मेरा प्रपोजल एक्सेप्टेंस दिया है. ये वैलिड प्रपोजल नहीं है. ये टर्म नहीं होना चाहिए कि आप चुप रहेंगे तो मैं ये मान लूँगा कि आप आपकी कार बेचने को तैयार है. नो, प्रपोजल शुड नॉट कंटेन ए टर्म. सो दिस इज़ अ वैलिड प्रपोजल में वैलिड होना चाहिए कि आप प्रपोज बरोबर कर रहे हो, सामने वाला एक्सेप्टेंस अपने मुंह से ही दे. सो 10th पॉइंट है, द प्रपोजल मे बी जनरल और स्पेसिफिक. ए स्पेसिफिक प्रपोजल इज वन विच इज मेड टू ए डेफिनेट पर्सन. प्रपोजल स्पेसिफिक कब होता है? जब आप दूसरे इंसान को डेफिनेट एक प्रॉपर पर्सन को ही देते हैं, यानी प्रॉपर उसी इंसान को देना है जिसको आप प्रपोजल देते हैं, जिससे आप एक्सेप्टेंस मांग रहे हैं. और जनरल प्रपोजल किसको कहते हैं? इज वन विच इज मेड टू ए ग्रुप ऑफ पर्सन और ए वर्ल्ड एट लार्ज. यानी या तो ग्रुप ऑफ पर्सन यानी या वर्ल्ड एट लार्ज. फॉर एग्जाम्पल, when a person issues an advertisement in the newspaper and declares a reward for finding out lost goods or missing boy, then such an advertisement would be called as proposal made to a public at large. यानी एक इंसान एडवर्टाइजमेंट देता है कि भाई न्यूज़पेपर में और डिक्लेयर करता है, यानी मेरी खोई हुई चीज़ें या मिसिंग बॉय कोई भी है वो वापस लाके देगा. तो इट इज़ अ प्रपोजल. वो एक प्रपोजल है पब्लिक एट लार्ज. दैट इज कॉल्ड एज ए जनरल प्रपोजल. नेक्स्ट पॉइंट है, द प्रपोजल मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव. ए प्रपोजल मे बी आइदर टू डू और नॉट टू डू समथिंग. A proposal to do something is positive proposal, whereas proposal not to do something is a negative proposal. अगर proposal आपने ऐसा दिया है कि आपको ये करना चाहिए तो that is a positive proposal. अगर proposal आपने ऐसा दिया है कि आपको ये करके ये नहीं करना चाहिए, that is called as a negative proposal. So the 12th point is the proposal may be conditional. The promiser may prescribe certain conditions in the proposal. He may also do so vice versa, the mode of acceptance. The promiser may be prescribed. या promiser prescribe कर सकता है certain conditions in the proposal और acceptance भी vice versa हो सकता है. So the 13th point is, the terms and conditions of the contract must have effectively communicated to the other party. जब आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, the terms and conditions आपको कम्युनिकेट करना चाहिए अदर पार्टी को effectively to form these conditions as a part of contract. अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट ये करना है तो अदर पार्टी से आपको बरोबर से कम्युनिकेट करना चाहिए. यहाँ पे एक एग्जांपल है, थॉमस वर्सेस LM&S रेलवे. यानी एक केस हुआ है, उसमें T who could not read took a railway ticket for a journey. On the front of the ticket it was printed for conditions see back. On the back of the ticket it was written that the railway company would not be liable for personal injury to passengers. Now T was injured in a railway station. The court held that T was bound by the conditions
and could not recover any damages because once the attention of the passengers is drawn to the rules of the company, it is immaterial whether or not the rules have been read or understood by the passengers or that the rules have been printed in foreign language. यहाँ पे टी जो है रेलवे टिकट लेता है और रेलवे टिकट लेके उसमें एक जर्नी करता है, तब एक टिकट में कंडीशंस लिखी रहती है कि भाई आपको कुछ इंजरी हो जाए पैसेंजर्स को तो रेलवे वाला आपको डैमेजेस पे नहीं करेगा। लेकिन उसमें टिकट में सब कंडीशंस लिखा था, लेकिन उसमें पैसेंजर्स ने वो कंडीशंस नहीं पढ़े थे, तो कोर्ट ने कहा कि इट इज़ इमेटीरियल। जब कंडीशंस लिखे हैं टिकट में है, आपने नहीं पढ़ा है तो वो आपकी गलती है। तो इट इज़ इमेटीरियल वेदर और नॉट द रूल्स हैव बीन रेड और अंडरस्टूड। आपको समझा है नहीं समझा है वो आपकी प्रॉब्लम है। द रूल्स हैव बीन प्रिंटेड इन द रूल्स हैव बीन प्रिंटेड इन अ फॉरेन लैंग्वेज। अगर रूल्स फॉरेन लैंग्वेज में भी लिखा है तो यू कैन नॉट क्लेम एनी डैमेजेस। So we have completed what is offer, what is the meaning of the term offer, and what are the essential elements and legal rules to form a valid proposal. So next class we will be taking what is acceptance.